Good evening, students. Am I audible, beta? Yes, sir. Okay. In today's session of a class, we'll start with your thermal effects of your current, beta. Thermal effects of current. आज कॉन्सेप्ट्स खत्म कर लेते हैं. कल और परसों सिर्फ प्रॉब्लम्स करेंगे सेल्स पे और किरचॉफ लॉस पे और पावर पे. एक्सक्लूसिवली प्रॉब्लम्स की क्लास रखेंगे हम लोग कल और परसों के लिए. Okay, sir. See that we'll try to do all the previous वो क्या बोलते हैं नीट के भी क्वेश्चंस इलेक्ट्रिसिटी में खत्म कर लें. And we'll try to go for a good practice of questions on Kirchhoff laws, cells, and as well as of your power concept. ठीक है. तो thermal effects of your current, या इसको हम लोग बोलते हैं Joule's effect, या इसको हम लोग बोलते हैं Joule's effect, और मान के चलो Joule's law. ठीक है. ये देखो बेटा, आपको ऑलरेडी मालूम है, you already know that in any conductor, if I consider any conductor, in the conductor there is a flow of your current because of what? Flow of your charges. Okay, they are the electrons present in this one, and when you connect it to an external potential, when you are connecting it to your external potential of your battery, there is a flow of a current in this one. So conventional flow of current इस तरह से होता है, और electronic current जो है ना in the conductor opposite direction में होता है. So electronic current is in the opposite direction, isn't it? And you know that in order to make this current flow, we need to do the work in the battery, that is called as of your EMF, isn't it? So charge dq is flowing between 2 points, means it is because of this potential difference which is being applied here right now, isn't it? So work done to move this charge from negative to the positive, that is called as of your potential. तो हम लोग यहाँ पर potential लिख सकते हैं right now. work done dw is equals to your v into your dq. So potential electrostatics में होता है v is equals to work done to move a unit charge in a circuit. So v is equals to dw by dq, or dw is equals to v into dq. Now can I write the value of your dq as? That is equals to v. dq is equals to what I can write, beta? I into your dt. So this is your work done. So work done in terms of your current is v into I into your dt. And you know that the rate at which the work is being done or is entering into the part of a circuit, that will be called as what? Power. आप लोग फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं right now. The rate at which energy is in this part of circuit, in the part of your circuit, यानी जो भी circuit के अंदर flow of charge हो रहा है, so that is represented by what? Power. That is nothing but what for me? Power. That is nothing but of your power, represented by your P. P is equals to dw by your dt. Power is equals to rate of doing the work. P is equals to dw by your dt. And dw already we got. What is how much for me? V into I into dt divided by your dt. So this dt gets cancelled. So power in the circuit is P is equals to V into your I. So this is the basic power in the circuit because of the flow of your current. So thermal effect में Joules ने बोला कि whenever there is a flow of electrons, because of this flow of electrons, we need to do certain amount of work. That work done is equals to potential applied across the battery into the charge flowing. So potential is nothing but what? Work done for moving a unit positive charge in a circuit is called as of your electric potential. So work done is equals to potential into dq. dq is equals to I into your dt. So this is your work done. And you already know that the rate at which energy is being moving in the part of a circuit, that is called as of your power. So power is equals to dw by your dt, and dw is v into I into dt divided by dt. dt gets cancelled. तो power कितना आ गया बेटा मेरे पास? V into your I.
Can anyone tell me the SI unit of the power, beta? Can anyone tell me the SI unit of the power? Power क्या था बेटा अभी? Power is nothing but equal to joule per second. Joule per second. 1 joule per 1 second. इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 joule per second. 1 joule per second is equal to कितना बेटा? 1 watt. 1 joule per second is equals to your 1 watt part of relation. So this was of your power in a conductor. Now see here, if I am talking about power dissipated in the resistor, power dissipated to what the power dissipated मतलब loss. Power dissipated is nothing but of a loss or used or wasted, जो भी करना है वो कर लो. So power dissipated in the resistor. Power dissipated in the resistor. Dissipated मतलब क्या? Loss. Dissipated मतलब क्या? Resistor आने के साथ ही current flow क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. So dissipated is nothing but what? Amount of your current absorbed बोल सकते हैं या wasted बोल सकते हो. So it is nothing but of your wasted or loss or maybe you can say absorbed. कुछ भी. Okay, these are the terms which we are used generally for the dissipated. So the energy or power dissipated in the resistor is nothing but of your. So the portion of the resistor, whatever we take, like say ये मान के चलो अपना resistor है, and here there is a flow of your current in this, isn't it? So the moment the current is flowing in this one, this is your I. The moment it reaches this junction and this junction, so because of this resistance, certain amount of energy is been lost in the form of your thermal energy. तो ये resistor क्या करेगा basically? This resistor is actually adjusting this current not to flow as easily as it was previously flowing. तो इसके पास एक potential develop हो जाएगा, that is nothing but of your V, isn't it? So the portion of the circuit is a resistor, there the potential difference has been applied. तो यहाँ पर potential क्या applied करा हुआ है? V is equals to I into R. Now we already know the power formula beta. Power is equals to your V into your I. So that is equals to V. V की value क्या लिख सकता हूँ मैं? I into your R into your I. So this will become for me how much? I square into your R. So power dissipated in the resistor. Power dissipated in the resistor is how much for me? P is equals to your I square into your R. Or else I can even write like this one. P is equals to. P is also equal to. Now see here. I'll keep the potential as it is. That is nothing but equal to your V into. Can I write the current right now from this one? I is equals to V by R. So I is equals to your V by R. So this can also be written in terms of your V square divided by your R. So what are the different forms of the power formulas I can write now? P is equals to your either I square into R, or this is also equal to in terms of potential V square by your R. So these are the forms of your power in the resistor. एक resistor के अंदर जब current जा रहा है, so we will be writing this one by the formula P is equals to I square into R into your V square by your R part of relation. Clear है? Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो बेटा. एक मान के चलो एक पॉजिटिव चार्ज है and this one is your negative. तो ये क्या है? पॉजिटिव प्लेट ऑफ योर बैटरी है और ये नेगेटिव प्लेट ऑफ योर बैटरी है, isn't it? इसमें से करंट बाहर जा रहा है. बाहर जा रहा मतलब क्या? डिस्चार्जिंग है कि नहीं? करंट इज गोइंग आउटसाइड मींस व्हाट? डिस्चार्जिंग. सो अगर करंट डिस्चार्ज हो रहा है, सो पावर विल बी गिवन. Power will be given, यानी that will be equal to V into I. That will be equal to V into your I. उसी तरह से in the cell, if it is a charging, if there is a flow of current like this is a positive and this is your negative. Now this is what beta? Charging of your cell or charging of your battery. So during charging of a battery, जो भी power होता है ना, वो power क्या होता है? Absorb होता है. So उसको हम लोग बोलते हैं P is equals to V into your I. So I hope you got it. When the power is getting absorbed and when the power is being given, power कब दिया जाएगा? When it is discharging. When there is a charging of a battery, then it will be absorbing. Then it will be your absorbing part of relation. Is that clear, beta? Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. Isn't it? So this was about your power dissipated in the resistor part of relation. और जब भी ये resistor में करंट जाएगा, वो करंट ये क्या हो जाएगा? हीटेड अप हो जाएगा. इस हीटेड के वजह से resistor में क्या हो जी? Thermal energy में convert हो जा रहा है. So current is converting into thermal energy. That means it is increasing the temperature of the resistor. So this effect is generally called as of your Joule heating effect. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Joule's heating effect. Because of the flow of your current, if the resistor is getting heated up, that effect is called as of your
जॉल्स हीटिंग इफेक्ट, तो ज्यादा अपने को यूज भी नहीं है, बट जस्ट अंडरस्टैंडिंग करो। तो द मोमेंट द करंट इज मूविंग, अगर ये रेसिस्टर बहुत ज्यादा हो गया, then the current is being getting converted into your thermal energy because of the collision of n number of electrons with the resistor. So that process is called as of your Joul's heating effect. That process is called as of your what? Joul's heating effect part of relation. Is that clear, beta? Chalo. Let us try to go for the next one. Energy dissipation in the resistor. Energy dissipated. Dissipated मतलब क्या बेटा? Absorbed or wasted or lost. Energy dissipated or lost in the resistor. So what is the amount of energy which is being dissipated or lost or wasted in the resistor? Energy का basic formula क्या है बेटा? मैंने अभी बताया आप लोग को. Energy is equals to, energy is always equals to power into time. Power into your time. Okay. यानी power P is equals to, I can write this one as of your dE by your dt. dE by your dt. यानी dE can be written as right now, dE can be written as of your P into your dt. तो यहाँ पर छोटा सा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग को यूज करना पड़ेगा. इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स. क्यों इंटीग्रेट करना पड़ेगा? अगर मुझे टोटल ई एनर्जी चाहिए तो इंटीग्रल ऑफ डी ओनली विल गिव मी द एनर्जी ना. सो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ डी, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ योर पी इनटू योर डीटी पार्ट ऑफ रिलेशन. तो इंटीग्रल ऑफ डी क्या बन जाएगा? ई, दैट इज इक्वल्स टू योर इंटीग्रल ऑफ पी इनटू योर डीटी. So this is the formula which is 99% used in the problems of your Joul's effect part of relation. डीएस का Is equals to integral of P into D. कॉलेज पे ये है Clear है बेटा? कांस्टेंट. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसको और मैं एप्लीकेशन कर ले सकता हूँ बेटा, क्योंकि पावर आई नो इन डिफरेंट फॉर्म्स. पावर मुझे करंट में मालूम है, पोटेंशियल में भी मालूम है. सो इफ आई राइट दैट वन, आई कैन राइट ऑल द केसेस फॉर दिस वन. देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, अगर इसका एप्लीकेशन ले रहा हूं मैं. एनर्जी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ योर पी इनटू योर डीटी. दिस कैन आल्सो बी रिटन एज ऑफ योर इंटीग्रल ऑफ योर पी. कैसे लिख सकता हूं बेटा मैं? आई स्क्वायर आर इनटू योर डीटी लिख सकता हूं क्या? आई इंटू आर अगर कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लो. सो इट इज आई स्क्वायर इंटू आर. दिस इज योर इंटीग्रल ऑफ योर dt. इंटीग्रल ऑफ dt कितना देगा बेटा? 0 to t इंटीग्रेट कर लो तो दैट विल गिव मी द t. सो एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू आई स्क्वायर r इनटू t. दिस एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल H या कभी-कभी कैपिटल E से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा. एनीथिंग इज राइट नाउ फॉर मी क्लियर. दिस इज नोन एज ऑफ योर Joul's heating effect का इक्वेशन. एनर्जी E R H is equals to I square R into your T. I square R into your T. Energy is also equal to integral. Power can also be written as of your V square divided by R into your dt. V square constant है तो बाहर निकाल लो. V square by R into your integral of your dt. लिमिट आ गया 0 से लेके t तक. 500 वाला आपको रैंक आ रहा है सॉरी 500 600 तक. वैसा नहीं, सुनो 150 मार्क का क्वालिफाई. क्वालिफाई बोले तो क्या तुम्हारा समझा नहीं? क्वालिफाई तो अब हमें प्राइवेट में लेना चाह रही डोनेशन की. क्वालिफाई बोले तो क्या? चलो आप लोग अब म्यूट हो जाए बेटा. प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाकर तो एडमिशन ले सकता पैसे दे. फैजल, मेडिकल फैजल चलो E is equals to ये क्या बन जाएगा बेटा? V square by your R. इंटीग्रल ऑफ योर dt कितना बन जाएगा बेटा? T. So this will be the energy in terms of what? Potential. In terms of your potential energy, E को भी लिख सकते हैं, H भी लिख सकते हैं. Don't take the tension in this one. Provided here potential is your constant and R is also your constant. ये कब यूज करेंगे बेटा? When current is equals to your constant. When current is equals to constant, H is equals to I square into R, and this is used when potential is your constant. When potential is equals to constant, that will be using. When potential and current both are constant, then क्या हो जाएगा? देखो थर्ड कंडीशन में E is equals. पूरा साल गया तो बेस्ट ना साल. क्या बातें कर रहे हैं यार तुम लोग? हाँ फैजल चलो. So power can be written as of better integral P is equals to V into your I into your dt. अगर V and I constant है तो बाहर निकालो V into I. ये हो गया इंटीग्रल ऑफ योर dt. लिमिट 0 से लेके t. कंपलसरी 4 सब्जेक्ट का पास this हुए one is तो V सेकंड into ईयर में I एडमिशन. into your 4 t. ठीक है. So this is a condition when current and potential is constant. Current I
एंड वी आर कांस्टेंट। अगर ये दो कांस्टेंट है तो जब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सो दिस आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ योर एनर्जी डिसिपिएशन के कंडीशन के अंदर, जिसके अंदर हम लोग को प्रॉब्लम्स यूज होते हैं बेसिकली। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? देखो फिर से एक बार देख लो जल्दी से। हम लोग क्या बात कर रहे थे? थर्मल इफेक्ट्स ऑफ ए कंडक्टर आर ए करंट इन द जॉल्स लॉ। कोई भी एक कंडक्टर के अंदर देयर इज अ फ्लो ऑफ ए करंट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक करंट, और ये चार्ज मूव करने के लिए वी नीड टू अप्लाई सर्टेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए बैटरी। So potential applied of the across the conductor is V is equals to dW by dQ. So work done is equals to potential into dQ. Charge is nothing but I into dt. So this is your work done. So this is the amount of work done for the flow of a current in a given conductor. And we already know from the first year mechanics that the rate at which energy is doing the part, or the rate of the energy. Rate means what beta? Anything divided by time is called as a rate. So energy divided by time. Energy is nothing but the form of work. So work done by time is known as of your power. Is known as of your power. So power हो गया V into I into dt by dt चले जाएगा. So power is equal to how much for me? V into I. This is our formula. SI unit is joule per second because power is work done by time. Work is measured in joule, time is measured in seconds. So 1 joule per 1 second is equals to 1 watt. Is equals to how much for me? 1 watt part of relation. Now power dissipated यानी lost or observed in the resistor is this one. So एक resistor के ऊपर अगर करंट जा रहा है तो potential developed across this resistor is V is equals to I into your R. So this value I can substitute in the power formula. V is equals to V into I. Simplify it, we are getting P is equals to I square into your R. In the same way, if I take then the place of I, V by R, we get power is equals to V square. So these are the two forms of your power in terms of current or in terms of your potential. Now अगर discharging हो रहा है मतलब power is given. अब charging हो रहा है मतलब power will be the observed. That is a condition you need to remember. Now energy dissipated in any resistor is energy is always equals to your what? Power into your time. Power into your time. So P is equals to dE by dt or dE is equals to P into dt. अब पूरी एनर्जी आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सो E is equals to integral of P into dt. बस इसको याद रख लो, बाकी के डेरिवेशंस आपको पूरे ऑटोमेटिकली निकलते चले जाएंगे बेसिकली. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर अप टू हियर? Yes, sir. ठीक है ना? तो एक छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं, देन विल ट्राई टू गो फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस. देखो बेटा एक छोटा सा प्रॉब्लम. कंसीडर फॉलोइंग सर्क्यूट. Consider the following circuit. Find power generated in the resistor R. In the resistor capital R. ठीक है ना? This one is given as the circuit diagram बेटा. ये हो गया एक resistor और यहाँ पर एक बैटरी है पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव. And here there is a closed line. तो इसमें से करंट जा रहा है. This one is of your I is equals to your 2 amperes. और इसका EMF है E is equals to 12 volt और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2. तो इसमें से करंट जा रहा है और ये कैपिटल R है मेरे पास 4 ohms. देन यहाँ पर सेम करंट दैट इज नथिंग बट ऑफ योर I. ठीक है ना? तो पूछ रहा क्या? देखो कंसिडरिंग द फॉलोइंग सर्क्यूट फाइंड द पावर जनरेटेड इन द रेजिस्टर. इसके अंदर पावर जनरेटेड. पहले बताओ ये चार्जिंग है कि डिस्चार्जिंग है? करंट बाहर निकल रहा है. डिस्चार्जिंग. तो डिस्चार्जिंग के लिए मैंने अभी बताया आपको. देखो जैसे बैटरी से करंट निकल रहा है तो डिस्चार्जिंग. तो पावर विल बी गिवन ना. सो पावर विल बी द गिवन. सो पावर इनपुट विल बी इक्वल टू योर हाउ मच, यानी जो पावर आप दे रहे हो पावर इज इक्वल्स टू EMF इज नथिंग बट इक्वल टू योर E इनटू योर करंट दैट इज नथिंग बट ऑफ योर I. तो EMF कितना है 12, करंट कितना है 2. तो पावर विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा 24 वॉट. तो इसका पावर जो गिवन है इनसाइड है या इनपुट पावर दे उसको दे रहा है बेसिकली. पावर गिवन कितना है मेरे पास 24 वॉट. नाउ पावर डिसिपिएटेड इन द सोर्स कितना हो जाएगा भाई? सोर्स क्या है यहाँ पर अपने पास राइट नाउ? ये सोर्स है जो अपने को करंट निकाल रहा है. सो पावर डिसिपिएटेड इन द सोर्स मतलब कितना हो जाएगा बेटा? पावर डिसिपिएटेड मतलब वेस्टेड. पावर डिसिपिएटेड इन द सोर्स. पावर डिसिपिएटेड इन द सोर्स यानी एक्चुअली ये जो पावर है ना इस EMF के वजह से इतना पावर गिवन होना चाहिए, लेकिन रेजिस्टर के वजह से ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी है ना, ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो पावर डिसिपिएट होता है वो कितना हो जाएगा? बिकॉज ऑफ द करंट P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस. तो पावर कितना है 2 स्क्वायर. इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2. सो इट इज 4 into 2. दिस इज नथिंग बट फिर 8 वॉट. सो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इनपुट पावर भी बोल सकता हूँ. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफ योर इनपुट पावर. सो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस्ड
electrical power produced will be equal to how much for me? 24 watt. And power dissipated by the source is how much for me? 8 watt. अब आउटपुट कितना देगा ये बताओ जल्दी से, आउटपुट कितना होगा? आउटपुट पावर विल बी इक्वल टू हाउ मच? पावर आउटपुट विल बी इक्वल टू योर हाउ मच? पावर आउटपुट ऑफ द सोर्स। समझ में आ रहा है? एक्चुअली अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो इस सोर्स का पावर कितना होना चाहिए था? 24 आना चाहिए था, लेकिन इस इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से पावर जो लॉस हो रहा है इस सोर्स के अंदर, दैट इज हाउ मच फॉर मी? 8 वॉट। जैसा मान के चलो अपन कोई कार बनाते हैं या कोई कंपनी कार बनाती है, वो बोलते हैं कि 1 लीटर में ये मान के चलो 22 किलोमीटर चलती है, दैट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। बट जब हम लोग 1 लीटर पेट्रोल इसमें डाल के चलाएंगे तो शायद ये 18 दे या 20 दे, तो ये 2 किलोमीटर का डिफरेंस क्यों आ रहा है? बिकॉज दैट एनर्जी और दैट अमाउंट ऑफ योर किलोमीटर की जो एनर्जी है ना, दैट पेट्रोल की जो एनर्जी है ना, दैट इंजन इज बीन यूटिलाइजिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर वर्किंग। तो 100% एफिशिएंसी कोई भी ऑब्जेक्ट में नहीं होता है बेसिकली। तो इसीलिए अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता, अगर आइडियल कंडीशन होता, तो वो जो सोर्स है, ये जो सोर्स है, तो कितना पावर देना चाहिए था? 24 वॉट। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कितना दे रहा? 8। सो आउटपुट पावर अभी कितना आ जाएगा? सो 24 माइनस 8, isn't it? So power output कितना आ जाएगा बेटा? Power output will be coming out to 24 actual power developed minus 8, यानी ये हो गया 16 watt, isn't it? Now power generated in the resistor कितना हो जाएगा बेटा? 16 watt. So power generated in this will be equal to how much for me? 16 watt part of relation. Clear है सभी को? Is it clear? Is it clear? So power generated और पावर आउटपुट टू द सोर्स, यानी ये सोर्स से जो पावर जा रहा है इस रेसिस्टर के अंदर कितना पावर जाएगा? सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? इट इज ओनली योर 16 वॉट। एक्चुअली कितना था? 24। और ये इसकी बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कितना वेस्ट हो रहा है? 8 वॉट्स वेस्ट हो जा रहा है। तो 24 में से 8 निकाल दो तो बचा कितना? 16 वॉट। ये 16 वॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीन एंटरिंग इनटू दिस सर्किट। इज दैट क्लियर? Yes, sir. और एक क्वेश्चन करा देता हूं, देखो। सी find energy dissipated in the resistor in 2 seconds. The resistor in your 2 seconds. मान के चलो एक रेसिस्टर दे दिया मैंने आप लोग को, जिसका रेसिस्टेंस है 2 ओम और इसमें से करंट जा रहा है 3 एम्पियर्स। I is equals to 3 एम्पियर्स। अब इसमें करंट कांस्टेंट है तो इसका एनर्जी डिसिपेशन बताओ। I है, R है मेरे पास, तो एनर्जी डिसिपेशन का फॉर्मूला E is equals to I square R into T, बिकॉज करंट इज कांस्टेंट इन दिस वन। तो I की वैल्यू कितनी हो गई? 3 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई? 2। टाइम कितना हो गया? 2 सेकेंड्स, तो कितना हो गया? 36 जूल्स। क्लियर है? और एक देखिए, अगर मैं और एक रेजिस्टेंस दे रहा हूं ऐसा, मान के चलो ये है 3 ओम्स और इसमें जो करंट जा रहा है ना, वेरिएबल करंट है। मान के चलो I is equals to 3 into T, I is equals to 3 into T part of relation। कितने टाइम के लिए? T is equals to 2 seconds के लिए। T is equals to 2 seconds। क्या करंट कांस्टेंट है? यहां पर करंट क्या था? कांस्टेंट था। यहां पर करंट कितना था? कांस्टेंट। तो यहां पर क्या करंट कांस्टेंट है क्या बेटा? दिस करंट इज व्हाट? वेरिएबल। दिस करंट इज व्हाट? वेरिएबल। तो जब वेरिएबल है तो क्या लेंगे हम लोग? अगर करंट वेरिएबल है तो हम लोग का क्या कॉन्सेप्ट है अपने पास? इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल ऑफ P into your dt। सो यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा इसके लिए? इसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताओ? E is equals to इंटीग्रल ऑफ योर P into your dt, that is equals to इंटीग्रल P कितना दे रखा है? P is equals to क्या लिख सकता हूं मैं इन टर्म्स ऑफ करंट? P is equals to I square R into your dt। कितने टाइम के लिए? 0 से लेके 2 सेकेंड्स के लिए। I की वैल्यू दे रखा है 3D डाल दो, R की वैल्यू दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। सो जस्ट सब्स्टिट्यूट एंड सिंपलीफाई द प्रॉब्लम। तो एनर्जी कितनी मिल जाएगी? E is equals to इंटीग्रल ऑफ योर 0 to your 2, I की जगह क्या डालोगे? 3T। तो ये बन जाएगा मेरे पास 3 into T होल स्क्वायर into your R। R की वैल्यू कितनी है? 3 into टाइम, दैट इज नथिंग बट dt। तो एनर्जी बना कितना? E is equals to 3 स्क्वायर कितना है बेटा? इंटीग्रल ऑफ 3 स्क्वायर इज नथिंग बट 9 into T square into 3 into your dt। तो कुछ कांस्टेंट दिखाई दे रहा क्या? 3 9s और 9 3s 27। सो 27 बाहर निकाल दो,
integral of t square into your dt, limits are from 0 to 2. क्लियर है? Yes, sir. तो ये एनर्जी कितना बना? Yes, sir. 27. इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर इंटू dt कितना है बेटा? T cube वेरी गुड, t cube by 3. लिमिट्स आर 0 to 2. तो 27/3 बाहर आ गया. In the place of 3 upper limit, that is nothing but 2 cube minus of your 0 cube. ठीक है ना? तो ये कितना बन जाएगा, कोई बता सकता है? 3 1 जा 72. 3 जा, तो ये हो गया 9 into 2 cube कितना हो जाएगा बेटा? 8. 8. This is your 8 minus 0, that is nothing but 8. 9 8 जा 2. 72. कितना? 22. 72. यूनिट क्या हो जाएगा? जॉल. बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Is it clear for everyone? Yes, sir. चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं. मान के चलो we got two equal resistors. We got two equal resistances when connected in series. When connected in series. When connected in series to a battery. To a battery consumes power of 60 watt. Okay, if these resistance are now connected, if these resistance are now connected in parallel, to same battery, to your same battery, the power consumed will be पहले क्वेश्चन पढ़े अच्छी तरह से. सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली. देखो, वी गॉट टू इक्वल रेजिस्टेंस बेटा व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक है, पहले दो रेजिस्टेंस दे रखा है, मैं इसको सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं. ऐसा कनेक्ट कर लिया तो ये एक रेजिस्टेंस आर है और एक रेजिस्टेंस आर, इक्वल बोला है ना. तो टू इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी. तो मान के चलो एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, ये हो गया वी. बैटरी कंज्यूम से पावर, ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा है? पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू 60 वॉट. ठीक है ना. तो रेजिस्टेंस बताओ बेटा, आर इफेक्टिव कितना बनेगा? आर प्लस आर, दिस विल बिकम फॉर मी 2R. ठीक है ना. तो पावर दे रखा है तो क्या मैं पोटेंशियल निकाल सकता हूं क्या इस बैटरी का? P इज इक्वल्स टू हाउ मच फॉर मी? P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय ओवर R. P वैल्यू कितना दे रखा है? 60. दैट इज इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी दे रखा है बेटा? 2 into your R. क्लियर है? इज इट क्लियर? दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. Yes, sir. उसके बाद देखो क्या दे रखा है. उसके बाद उसने क्या बोला? इफ दिस रेजिस्टेंस आर नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल. अब इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर लो. सो दिस इज वन रेजिस्टेंस हियर एंड दिस इज योर वन रेजिस्टेंस हियर एंड इट इज कनेक्टेड टू द सेम बैटरी. बैटरी आपने चेंज नहीं किया तो पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा. सो यहाँ पर हो गया सेम पोटेंशियल, दैट इज नथिंग बट V. तो ये हो गया R और ये हो गया R. तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना बनेगा बेटा? R इन पैरेलल कितने? 2. ये हो गया R/2. तो इसमें से पावर जो कंज्यूम होगा जब, ये क्या पूछ रहा है देखो प्रॉब्लम में, if these resistors are now connected in parallel to the same battery, the power consumed will be equal to how much? तो इसके अंदर power consumed P dash is equals to how much? ठीक है ना. तो अब इसका भी पावर का फॉर्मूला निकालो. P is equals to V square by over, ये कितना हो जाएगा? R/2. यानी ये हो गया 2 into V square divided by over R. ठीक है ना बेटा. तो यहाँ पर कुछ रिलेशन बन रहा है मेरा, V स्क्वायर बाई 2R. तो क्या मैं यहाँ पर V स्क्वायर बाई R की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या इसमें से? V स्क्वायर बाई ओवर R इज इक्वल्स टू 2 6 12, तो ये हो गया 120. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? सो पावर P इज इक्वल्स टू 2 into V स्क्वायर बाई R विल बिकम हाउ मच फॉर मी? 120. 12 2 24, so ये हो गया 240 वाट. क्लियर है? Is it clear?
सर इसमें हम लोग आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर सकते? तो यहाँ पर पोटेंशियल दे रखा है ना, करंट तो नहीं दिया ना उसके अंदर प्रॉब्लम में, कहीं पर अपने पास करंट दिया क्या? नहीं। यहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट है ना, तो मैंने यहाँ पर लिखा था टाइम पे आप लोग को सब कुछ लिखा दिया था डिटेल में कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो क्या लेना है अपने को, यहाँ पर लिखाया था देखो, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो क्या लोगे आप, वी टर्म्स में लोगे, अगर करंट कांस्टेंट है तो आई टर्म्स में लोगे, तो इसके अंदर पोटेंशियल ठीक है कांस्टेंट है, ठीक है ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ले रहे हैं। क्लियर ठीक है? है सर। हाँ सर। नेक्स्ट वन देख लेते हैं जल्दी से, पावर रेटिंग ऑफ एन अप्लायंसेस, पावर रेटिंग ऑफ एन अप्लायंसेस। आपने कभी देखा होगा बल्ब वगैरह खरीदते रहते, उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है 60 वॉट, 100 वॉट, या आयरन बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ रहता है 200 वॉट, 1000 वॉट वगैरह बोल के बेसिकली। सो वॉट जो है ना एनर्जी है, यानी एनर्जी कितनी यूज होगी अगर उतना वोल्ट आपने कनेक्ट कर दिया। जैसा एक बल्ब ले लो आप घर में, जैसा आप लोग बल्ब यूज करते हैं, isn't it? आपने बल्ब तो देखा होगा इन नंबर ऑफ टाइम्स, तो ये हो गया अपने पास एक बल्ब, ठीक है ना, तो ये इसका हो गया बोर्ड जो भी है सर्किट का सर्कुलर पार्ट। तो इसका पोटेंशियल जो घर में होता है अपने पास कितना होता है 220 वोल्ट, और मान के चलो ये 60 वॉट, ओके 60 वॉट, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, 60 वॉट मतलब क्या, दिस वन इज 60 वॉट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ व्हाट, पावर, यानी दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 60 जॉल पर सेकंड, 60 joule per second, यानी energy dissipated when it is being connected, this is nothing but what, energy, this one is your energy dissipated, energy dissipated when connected to, when connected to कितना 220 वोल्ट, यानी 220 वोल्ट को अगर मैं 60 वॉट का बल्ब लगा रहा हूं तो 60 वॉट मतलब क्या, वॉट इज नथिंग बट व्हाट, जॉल पर सेकंड, कितनी एनर्जी पर सेकंड यूज हो रही है। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपिएटेड व्हेन इट इज बीन कनेक्टेड टू दैट मच अमाउंट ऑफ योर वोल्ट, यानी इसका ब्राइटनेस जो है ना, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, पावर कंज्यूम्ड, है कि नहीं। अगर ये मैं 100 वॉट लेता तो क्या ज्यादा एनर्जी होती, यस सर। अगर ये 200 वॉट होता तो क्या ज्यादा एनर्जी होती। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसकी जो ब्राइटनेस है, ये ब्राइटनेस किस पे डिपेंड कर रही है, पावर पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है। हाँ सर। तो आई कैन से दैट brightness is directly proportional to brightness of your bulb, brightness of your bulb is directly proportional to what beta, power consumed by instrument, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, मे बी आयरन बॉक्स, मे बी बल्ब, जो भी कंडीशन लगा रहे वो लगा लो। सो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट बेटा, पावर कंज्यूम, ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं, क्लियर है, यस सर। इजंट इट। तो एक एग्जांपल देख लो इसको अच्छी तरह से, मान के चलो ए बल्ब हैज पावर, ए बल्ब हैज ए पावर रेटिंग ऑफ 220 वॉट कामा 100 वॉट, ये कुछ भी हो सकता है बेटा, 100, 60, 120 जो भी लेना है कर लो बेसिकली। तो अब रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब बताओ जल्दी से, रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब कितना हो सकता है इसका, रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब विल बी इक्वल टू हाउ मच, रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब यानी ये बल्ब कितना रेसिस्टेंस टॉलरेट कर सकता है। सो पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, तो रेसिस्टेंस निकालना है इसमें से, R इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई पी। तो मेरे पास तो पोटेंशियल दे रखा है 220, तो ये हो गया 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई ये कितना है 100, तो ये 0 चले गया और ये 0 चले गया, isn't it? तो ये बना कितना बेटा 22 इंटू 22 कितना बना, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 8 ये हो गया 4, 484 ओम्स। तो रेसिस्टेंस क्या हो गया, एक कांस्टेंट टर्म आ गया, ठीक है ना बेटा। तो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब कितना है अभी राइट नाउ, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज इक्वल्स टू 484 ओम्स, 484 ओम्स। तो इसमें करंट कितना भेज सकते हो आप, कितना मैक्सिमम करंट भेज सकते हो, कितना मैक्सिमम करंट यू कैन से, बताओ। मैक्सिमम करंट मतलब क्या, करंट कांस्टेंट होना है, इतना करंट मैं कांस्टेंटली भेज सकता हूं उसके अंदर मैन्युफैक्चर करते से टाइम पे। तो जब पावर कांस्टेंट है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट कांस्टेंट है तो P इज इक्वल्स टू V इंटू I,
तो ये हो गया I is equals to how much for me? P by V. So this is your maximum current. तो P की वैल्यू कितनी है? पावर 100. पोटेंशियल कितना है? 220. ये और ये चले गया तो बचा कितना बेटा? 5/11. So this is your this much amount of clear है? Yes, sir. Isn't it? So ऐसे वाले ही प्रॉब्लम्स आते हैं बेटा, एक दो फॉर्मुलेस के ऊपर ही, बाकी का पूरा ये खेल इसी पे चलता रहता है बेसिकली. So power consumed will be always equals to your how much for the given conditions. Power rated will be equal to your how much part deflation. तो कभी भी आप रेसिस्टेंस लिख रहे हो तो इसको दिमाग में लिख लो बेसिकली, एक दिमाग में बिठा लो इसको. सो एक नोट डाल के आप लोग अपने दिमाग में बिठा लो, कभी भी आप रेसिस्टेंस के पावर के प्रॉब्लम्स कर रहे हैं तो करना क्या है, रेसिस्टेंस कैपिटल R इज ऑलवेज इक्वल्स टू पोटेंशियल जो है ना डिजाइन किया हुआ है, जो इस पे लिखा हुआ है उसको लिखना है V डिजाइन डिवाइडेड बाय योर पावर डिजाइन. पावर डिजाइन यानी जो इस पे लिखा हुआ है. सो दैट विल गिव मी द कंडीशन. क्लियर है? Yes, sir. Isn't it? So V design and P design are what? Design voltages and the power of the bulb. यानी मुझे इतना डिजाइन करना है, मुझे इतना पावर डिजाइन करना है, इसके लिए हम लोग ये रेसिस्टेंस यूज करते हैं. So this is your resistance which can be obtained by the given condition. अगर रेसिस्टेंस निकालना है मतलब मुझे पोटेंशियल डिजाइन कर लेना है और पावर डिजाइन कर लेना है. So R is equals to V square design by your power design. क्लियर है? Yes, और sir. इंडिया के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है, ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कोई अमेरिका से है क्या? फॉरेन कंट्री जाके आए कोई? 110 है All शायद. electrical appliances are designed for same voltage. कितना वोल्टेज इंडिया के अंदर? 220. तो 220 वोल्ट. अगर आप यूएस से ले लोगे, यूएसए के अंदर 110 कितना है? 110 है. 110. तो इसीलिए आपने देखा होगा वहां के वोल्टेजेस, वहां के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आप इंडिया को लाए तो आपको अडेप्टर यूज करना पड़ता है, डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. ठीक है ना? Yes, sir. तो ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंडिया आर बीन वर्किंग ऑन व्हाट वोल्टेज? इतना वोल्टेज तो मिनिमम अपने को रखना ही रखना है बेसिकली. ठीक है ना? सो दैट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट्स यू नीड टू रिमेंबर फॉर द गिवन कंडीशन. तो अब नेक्स्ट हेडिंग लिख लो राइट नाउ हियर, पावर कंज्यूम्ड. पावर कंज्यूम्ड. Am I going speed or something like that? No, sir. चलो, पावर कंज्यूम. पावर कंज्यूम किस पे डिपेंड करता है? देखो बेटा जल्दी, पावर कंज्यूम विल डिपेंड ऑन द सप्लाई वोल्टेज. यानी मान के चलो आप अपने घर में अगर बल्ब लगा, 0 वोल्ट का बल्ब लगा हुआ रहता है ना बेटा घर में, अगर आप 0 वोल्ट के बल्ब को निकाल के अगर आप 100 वोल्टेज का बल्ब उसमें वही सॉकेट में लगाओगे तो क्या पावर कंजम्पशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? रात में जब हम लोग सोते हैं बेडरूम में तो अपने पास बेडलाइट होती है ना बेटा, बेडलाइट का जो होल्डर होता है उसके अंदर अगर आप बेडलाइट को निकाल के 100 वोल्ट का वोल्टेज लगाओगे पूरे रात के लिए तो क्या पावर कंजम्पशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ, sir. बढ़ेगा, sir. तो मैं क्या बोल सकता हूं? सो कैन आई से दैट पावर कंज्यूम्ड किस पे डिपेंड करेगा? पावर कंज्यूम्ड डिपेंड ऑन यानी अपनी एनर्जी आपके खाने पे डिपेंड करता है. अगर आप अच्छी तरह से खाना खाओगे, टाइम पे खाओगे तो यू ऑलवेज रिमेन एक्टिव, यू नेवर गेट ड्रजीनेस और यू नेवर गेट व्हाट डू कॉल दैट वन, बेसिकली लूज द पावर. अगर टाइम पे खाना खा रहे हो, टाइम पे उठ रहे हो और टाइम पे आप बेसिकली एनर्जी को यूज कर रहे हो तो इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. अगर आप इरेगुलर पैटर्न बना रहे हो अपने खाने में, देन पावर कंज्यूम्ड योर बॉडी इज नॉट कांस्टेंट, देन यू ऑलवेज फील ड्राउजीनेस, यू ऑलवेज फील कि अरे आज हाथ नहीं, और आई एम नॉट फीलिंग गुड वगैरह वगैरह होता है. तो किस पे डिपेंड करता है? अपने कंजम्पशन पे डिपेंड करता है. तो पावर कंज्यूम्ड डिपेंड ऑन द सप्लाई, डिपेंड ऑन योर सप्लाई वोल्टेज. इसलिए मम्मा को बोलो घर में या पापा को बोलो जो भी घर में बना रहे हैं कि टाइम पे खाना दे और टाइम पे सुलाए और टाइम पे उठाए. ठीक है ना? तो 2 बजे का खाना आप 4 बजे खा रहे हो, रात का खाना 8 बजे या 9 बजे, 8 बजे का खाना 7:30 बजे का खाना आप रात के 10 बजे खा रहे हो, तो your body will not give that much of huge efficiency which is being actually required. And some of the good habits and qualities of a good student to get a good seat is always go to the bed early and get up from the bed early part of relation and have the food every time in a what do you call that one, regular timings. Isn't that is always help for you in the body part of relation. Okay, any of मेरा टॉपिक नहीं होता. पावर कंज्यूम्स विल डिपेंड अपॉन व्हाट राइट नाउ योर सप्लाई वोल्टेज. यानी सप्लाई वोल्टेज अपने यहाँ पर अपने मम्मा हो सकते हैं बेसिकली घर में, तो उनका आप नाम लिख सकते हो. तो पावर कंज्यूम डिपेंड ऑन द सप्लाई वोल्टेज विच मे डिफर
which may differ or which may different from rated power, अगर आप घर में हो तो आपको एक ही सप्लाई मिलेगा, अगर आप घर के बाहर हो आफ्टरनून में या रात में तो आपका खाने का जो सिस्टम होता है ना वो चेंज हो जाता है, तो दैट इज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट हु इज सप्लाइंग यू द एनर्जी. So power consumed will depend on the supply voltage which may be different from your rated power. तो power consumed कैसा निकालते हैं देखो right now, power consumed यानी power consumed is always equals to potential supplied, that is your V supply square divided by capital R. So this is your power consumed. ठीक है, power consumed is equals to potential supplied square divided by R. Okay, अब यहां पर देखो, for potential supply, if the potential of your supply is equals to your potential of design, यानी आप मान के चलो आप 2 बजे घर के बाहर जा रहे हो, रात का भी आप घर के जा रहे हो, घर से बाहर जा रहे हो, अब मान के चलो अगर आपके मम्मा ने आपको जो खाना रेगुलरली मिलता है वो आपको एक टिफिन बॉक्स में डाल के दे दिया, बेटा कि आप आफ्टरनून में यही खाओ और रात में भी यही खाओ, एंड यू कम बैक, देन व्हाट यू मीन बाय दैट वन, वोल्टेज सप्लाइड बाय योर मॉम इज ऑलवेज इक्वल टू डिजाइन, यानी आपको जो चाहिए था एवरी डे इन द आफ्टरनून इवनिंग वही मिल रहा है, तो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इट इज सेइंग दैट अगर वोल्टेज सप्लाई इज इक्वल्स टू वोल्टेज डिजाइन then power consumed will be equal to power design. तो जितनी एनर्जी आपके घर पे बैठे मम्मा खाते उस टाइम पे मिल रही थी तो आप वही एनर्जी आपको बाहर भी मिल जाएगी, so that will be the power design, this will be your power design. या घर में सुबह में टिफिन घर में मम्मा का खा के आ रहे हो और 2 बजे फोकस में बैठ कर पिज्जा खा रहे हो और रात के अंदर आप चिप्स खा रहे हो, तो आपकी बॉडी तो हाथ दे दीजिए and you will not feel good while studying a lot basic condition. So you always try to maintain this one ki whatever supply is there it is a constant and it is also taken in a good way. So voltage supply अगर voltage design के बराबर होना है मतलब क्या होना चाहिए, आपका power consumption must be equal to your power design. ठीक है ना, इसको हम लोग और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. तो पावर कंज्यूम क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पर, पावर कंज्यूम्ड विल डिपेंड ऑन द सप्लाई वोल्टेज व्हिच मे बी डिफरेंट फ्रॉम रेटेड पावर. So power consumed is equals to V supply square divided by R. ये फॉर्मूला अपन ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं. अगर आपका पोटेंशियल सप्लाई इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ अ डिजाइन देन ऑब्वियसली पावर कंज्यूम्ड विल बी इक्वल टू योर पावर डिजाइन. let us try to understand it is more detailing. मान के चलो say let us consider two bulbs. Let us consider two bulbs, okay, of wattage P1 and P2, wattage P1 and P2. Okay, for V voltage of supply, अगर V voltage of your supply is equals to voltage of design is equals to V. आप सप्लाई भी सेम है डिजाइन भी सेम है उसको हम लोग ले रहे हैं, तो रेसिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट बल्ब क्या हो जाएगा बेटा, रेसिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बल्ब कितना होगा बेटा, वो जल्दी से बताओ. Resistance of the first bulb will be R1 is equals to V square divided by your power P1. In the same way, resistance of second bulb resistance of your second bulb यानी R2 के लिए भी क्या हो जाएगा, V square divided by your power consumed, that is nothing but of your P2, क्योंकि बल्ब डिफरेंट है कि नहीं. सो रेसिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट बल्ब कैसा हो गया, V स्क्वायर बाय P1, पावर वोल्टेज कांस्टेंट है, एंड रेसिस्टेंस ऑफ द सेकंड बल्ब इज V स्क्वायर बाय योर P2. इज इट क्लियर अप टू हियर, यहां तक क्लियर है इसको, इजंट इट, ये क्लियर है. ये देखो पावर कंज्यूम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट के लिए इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो पावर कंज्यूम्ड इज V सप्लाइड बाय R. अगर आपका सप्लाइड इज इक्वल टू डिजाइन है तो पावर कंज्यूम्ड इज आल्सो इक्वल टू डिजाइन. तो मान के चलो मेरे पास दो बल्ब्स है जिसका पावर P1 P2 है, अगर पोटेंशियल दोनों का सेम है देन द रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट बल्ब विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, V स्क्वायर बाय P1, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड बल्ब विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, V स्क्वायर बाय योर V2. अगर ये बल्ब को मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो फर्स्ट वन देख लो, bulbs connected in series, bulbs connected in your series, bulbs connected in your series. ठीक है ना, तो यहां पर एक बल्ब है और यहां पर एक बल्ब है, ये हो गया रेसिस्टेंस R1 और ये हो गया रेसिस्टेंस R2, एंड बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड टू कॉमन पोटेंशियल.
जो इससे पहले मैंने बताया था कि दोनों को एक ही पोटेंशियल से मैंने कर दिया। तो इसमें से तो करंट जाएगा, तो ऑब्वियसली इसमें करंट है, तो इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। सो इन सीरीज बोथ द बल्ब्स हैव व्हाट बेटा? इन सीरीज करंट इज सेम, करंट इज सेम। तो पावर कंज्यूम्ड बाय P1, फर्स्ट बल्ब जो कंज्यूम करेगा, डिवाइडेड बाय पावर कंज्यूम्ड बाय योर 2, पावर कंज्यूम्ड बाय योर 2, तो कितना हो जाएगा बताओ? सो दिस विल बी योर I स्क्वायर इंटू R1 डिवाइडेड बाय योर I स्क्वायर इंटू योर R2, ठीक है ना? तो इसमें क्या करते हुए दिखाई दे रहा? I स्क्वायर तो कट गया, तो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? R1 बाय योर R2। तो अब पावर जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। मान के चलो इफ P1 इज ग्रेटर देन P2, तो मतलब क्या? अगर मेरे को फर्स्ट पावर के पास, फर्स्ट बल्ब के ऊपर, ये बल्ब B1 है ना बेटा, ये बल्ब B1 है और ये बल्ब B2 है। अब मुझे दोनों सीरीज में लगा दिया, लेकिन मुझे फर्स्ट बल्ब की पावर ज्यादा चाहिए, यानी P1 शुड बी ग्रेटर देन P2, तो मुझे करना क्या होगा बताओ? मुझे करना क्या होगा? बल्ब का रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे। P1 should be greater than P2. P1 should be greater than P2. Then R1 must Resistance be R1 की lesser ज्यादा है than ना। R2. R1 must be lesser than R2. Therefore, this means P1 consumed is lesser than of your P2 consumed. है कि ना? P1 consumed will be, power consumed with the 1 will be lesser than the power consumed by your 2 part of relation. If P1 is greater than P2, then R1 is lesser than R2. So therefore, power P1 consumed will be what? Lesser than of your P2 consumed. So thus I can say that, thus in series, low wattage bulb glows brighter, will grow brighter than high voltage, than your high wattage bulb. ये बात क्लियर है? इसको समझना इंपॉर्टेंट है बेसिकली। इसको समझो बेटा, पावर कंज्यूम्ड बाय 1 इज लेसर देन पावर कंज्यूम्ड बाय 2, क्योंकि हम लोग को चाहिए क्या? पावर P1। इफ P1 इज ग्रेटर देन P2 मतलब रेजिस्टेंस R1 मस्ट बी लेसर देन R2। अगर रेजिस्टेंस लेस है, क्योंकि पावर कंज्यूम का फॉर्मूला देखो क्या है? पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या है? पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल सप्लाइड बाय R। इफ रेजिस्टेंस इज लेस, पावर कंज्यूम्ड विल बी मोर। ठीक है ना बेटा? Yes sir. Isn't it? So that is a given condition, right? तो टोटल पावर कंज्यूम्ड कितना होगा? कोई बता सकता है क्या? जो टोटल पावर कंज्यूम्ड तो यहाँ पर देखो P consumed will be equal to जो पावर कंज्यूम्ड हो रहा है, so that is equals to your V square divided by total resistance. So that is equals to V square divided by total resistance. Both of them are series, so R1 plus R2. So power consumed is equals to, ये हो गया V square divided by R1 कैसे लिख सकता हूँ बेटा मैं? V square by P1 प्लस V square by P2 लिख सकता हूँ ऐसा, isn't it? तो अभी क्या हो गया? ये कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ? पावर कंज्यूम्ड विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा फॉर मी? पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू V स्क्वायर तो कॉमन हो गया, इट इज 1 by P1 प्लस 1 by P2। क्लियर है? 1 by P1 प्लस ऑफ योर 1 by P2 पार्ट ऑफ रिलेशन। सो पावर कंज्यूम्ड क्या हो जाएगा? सो 1 by पावर कंज्यूम्ड, आई कैन राइट लाइक दिस, will be equal to 1 by P1 plus 1 by P2। Clear है? Yes sir. Isn't it? यानी when bulbs are connected in series, power consumed will be equal to how much for me beta? 1 by P1 plus 1 by P2, यानी opposite of the resistors, opposite of your resistors part of relation. So 1 by power consumed is equals to 1 by P1 plus 1 by P2 when they are connected in the series combination. Clear है? Yes sir. Next one,
bulbs connected in parallel. Bulbs connected in parallel. Parallel में क्या कॉमन रहता है बेटा? When bulbs are connected in Voltage. parallel, what remains constant in this one? वोल्टेज Potential. यहाँ पर एक बल्ब है, ओके, और मान के चलो यहाँ पर एक बल्ब है. Both of them are connected in parallel, और this is connected to your potential of your common. हाँ बेटा. So this is your V. This is your resistance R1. This is your resistance R2. ये बल्ब है B1 और ये है बल्ब V2. तो इसमें से करंट जाएगा यहाँ पर I, ठीक है ना. तो करंट यहाँ पर जाएगा तो इसमें से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया I1 और इसमें हो गया I2, ठीक है ना. I1 and as well as of your I2 part of relation. So in parallel what remains came बेटा? Voltage. Voltage across the bulbs is same, ठीक है ना. तो पावर कंज्यूम क्या उतना हो सकता है, कोई बता सकता है क्या? पावर कंज्यूम P1 P1 plus of P2. your consume divided by P2 of your consume will be equal to, ये हो गया V square divided by your R1, ये हो गया divided by V square divided by your R2. तो ये कितना बन जाएगा बेटा? R2 divided by R1, R2 divided by your R1, ठीक है ना. So this is very important बेटा. P1 consumed by P2, यानी यहाँ पर हो गया P1 by your P2 is equals to your R2 by your R1, isn't it? यानी इसका मतलब क्या है बेटा? What do you mean by this one? If P1 is greater than P2, then R1 must be lesser than R2, ठीक है ना बेटा. यहाँ पर क्या हो रहा था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना बेटा. If P1 is greater than of your P2, then R1 must be lesser than of your R2. Therefore, P1 consumed will be greater than of your P2 consumed. है कि नहीं? So P1 consumed is greater than of your P2 consumed, isn't it? If R1 is lesser than of your R2. That means in the parallel combination, high voltage bulb will go greater than of your less voltage. ये दिमाग में याद रखना आपने. This is very important point बेटा. In parallel combination, जब भी आप parallel combination में लगा रहे हो, in parallel combination, high voltage bulb glows brighter than less voltage bulb, ठीक है ना. सीरीज में क्या हो रहा था बेटा? सीरीज के अंदर देखो क्या हो रहा था. इन द सीरीज लो वोल्टेज बल्ब ग्लोस ब्राइटर देन ऑफ योर हाई वोल्टेज बल्ब पार्ट ऑफ रिलेशन. इसमें रिवर्स है. इसमें क्या हो रहा है? हाई वोल्टेज बल्ब विल गो ब्राइटर देन योर लेस वोल्टेज बल्ब इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो टोटल पावर कंज्यूम्ड कितना हो जाएगा बताओ? टोटल पावर कंज्यूम्ड कितना हो जाएगा? सो पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू V square by R total resistance. So that is equals to V square divided by, तो R resistance are in parallel ना, तो ये हो गया R1 into R2 divided by your R1 plus of your R2, ठीक है ना. So what is the value of R1 बेटा? R1 की वैल्यू मालूम है अपने पास. R1 is equals to V square by your P1 and R2 is equals to V square by your P2. तो पावर कंज्यूम्ड कितना बनेगा? पावर कंज्यूम्ड is equals to कितना बनेगा बेटा? So this one is V square divided by R1 is how much for me? V square by P1 into this one is V square by your P2 divided by this one is your V square by your P1 plus this one is V square by your P2, ठीक है ना. तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 by V square. V कितना बन जाएगा? 2 times of your V square. तो ये कितना बन जाएगा? जल्दी से देखो जल्दी से. So 1 by P1 plus 1 by P2. This one is a P1, 1 by P1 square, 1 by P2 square. If you am simplifying this one, this comes out for me. Power consumed is equals to
P1 प्लस ऑफ योर P2। तो पैरेलल में कॉम्बिनेशन क्या आ रहा, P1 प्लस P2, और सीरीज में क्या आ रहा, 1 by P1 and 1 by P2, exactly opposite to your resistor part of the relation। क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay? तो ओवरऑल ही देखो अपने को करना क्या है, पावर कंज्यूम ने पहले रेसिस्टर्स में हम लोग ने एनर्जी बात की, उसके बाद हम लोग ने ब्राइटनेस के बारे में बात करा। ब्राइटनेस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, पावर कंज्यूम्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद हम लोग ने बात किया पावर कंज्यूम्ड हम लोग सीरीज और पैरेलल में बात कर रहे हैं। सीरीज के अंदर हो जाएगा 1 by P1 प्लस 1 by P2, और पैरेलल के अंदर हो जाएगा मेरे पास P1 प्लस ऑफ योर P2 पार्ट ऑफ रिलेशन। इज इट क्लियर? Yes, sir. टाइम है ना, और 10 मिनट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लो बेटा छोटा सा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब is marked at 100 watt, 220 volt. Okay, if the supply voltage drops to 110 volt, what is the new power dissipated? कर देना जल्दी से। न्यू पावर डिसिपिएटेड इन बल्ब। फर्स्ट वन है 100 वॉट, सेकेंड वन है 200 वॉट, थर्ड वन इज 50 वॉट, एंड फोर्थ वन इज 25 वॉट। 220 से 110 को आ गया, तो पावर कितना है? An electric bulb is marked as of your 100 bulb, तो पहला वाला कंडीशन क्या था, पावर इज इक्वल्स टू योर 100 वॉट था, और पोटेंशियल कितना था, 220 वोल्ट था। कितना? न्यू पावर कितना होगा जब पोटेंशियल हो जाएगा 110। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? बल्ब कॉमन है। बल्ब कॉमन मतलब क्या? रेसिस्टेंस इज कांस्टेंट, रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब इज कांस्टेंट। अगर रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज कांस्टेंट, देन आई कैन यूज द रिलेशन P is equals to V square by your R। तो मैं इसमें से रेसिस्टेंस निकाल सकता हूं, R is equals to V square by P। V square है मेरे पास 220 into your 220 डिवाइडेड बाय पावर। पावर कितना है मेरे पास? 100। तो ये और ये और ये और ये चले गया, 22 into 22 is 484 ohms। तो पावर रेटेड कितना बन जाएगा? तो जल्दी से बताओ। पावर विल बी इक्वल टू, ये जो पावर बनेगा, सो आई एम राइटिंग हियर, सो दिस P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R, न्यू पावर। सो V की वैल्यू कितनी है? 110 into your 110 डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 484। ठीक है ना? तो कितने में जा रहा है देखो, दिस वन इज 110 टेंस, ये भी जाएगा 10 और ये जाएगा 44। ठीक है ना? तो कितना बना? 44 और ये भी 4 चले जाएगा। तो P डैश इज इक्वल्स टू 10 into 10 is 100 डिवाइडेड बाय 4, तो बना कितना? 25 वॉट। ठीक है ना? Yes, sir. कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है क्या? देखो 110 into 110 डिवाइडेड बाय 484, तो 10 10 10 44 44 4 बराबर है 25 वॉट। तो आंसर मस्ट इक्वल टू योर 25 वॉट। क्लियर है? इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ये तो खाली इंट्रोडक्शन है बेटा, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने को प्रैक्टिस करना है, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग टॉपिक फॉर द करंट इलेक्ट्रिसिटी बल्ब्स सीरीज एंड पैरेलल के कॉम्बिनेशन में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपने को करना है। और आज आप लोग थोड़ा सेल्स का और इलेक्ट्रिक किरचॉफ लॉस का और पावर का कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लो, एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल बी ट्राइंग टू डू एक्सक्लूसिवली द न्यूमेरिकल्स ऑन योर कंबाइंड टॉपिक ऑफ योर किरचॉफ लॉस, सेल्स एंड एज वेल एज ऑफ योर पावर। ठीक है ना? Okay, sir. ओके चलो सर इसके प्रॉब्लम्स चैतन्य मटेरियल में नहीं है सर, पावर के ज्यादा है, तो आप भेज दीजिए थोड़े। हाँ नहीं नहीं, जितना है उतना ही करो, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना इससे पहले बहुत ज्यादा डिटेल में था और टीचर्स भी बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाते थे। अभी जो नीट का क्वेश्चन में है ना बहुत कम है,
इसलिए ज्यादा आप लोग मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जितना मैं करा रहा हूँ उतना करो, और असाइनमेंट मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। आई विल सेंड यू टुडे Okay, द sir. असाइनमेंट रिलेटेड टू दिस वन, यू सेंड इट। और इससे पहले जो असाइनमेंट भेजा था मैंने आप लोग को, उसके पूरा हो गया क्या? सेल्स वगैरह का मैंने भेजा था। जी सर, सेल्स के हो गए। जी सर, सेल्स के हो गए। ठीक है, चलो, अगर कोई नहीं आ रहे तो सॉल्यूशंस बोल दो, मैं डाल दूंगा जिसके भी चाहिए, अदरवाइज यू ट्राई टू डू इट आउट एंड चेक विद योर कीज। सर हाँ बेटा, सर थर्मोडायनामिक्स का भी असाइनमेंट भेज दीजिएगा ना ग्रुप में। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब कैलोरीमेट्री का। हाँ हाँ वही। हाँ, थर्मोमेट्री और कैलोरीमेट्री का भी भेज देता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। बाय बेटा, थैंक यू सर। Thank you, थैंक sir. यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। बाय बेटा। Bye.